Morning, Nikita. So we have start recording also. Okay. All of you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So up to now we have saw from first we have the five languages like data definition language, then data manipulation language, then data retrieval language, transaction control language, data control language. Okay. So in DDL we have saw create, alter, drop, truncate, rename. Okay. In DML insert, update, delete. In DRL select. Okay. In transaction control language we also commit, rollback and save point. And data control language we see the grant and revoke. Okay. So in DDL create, we all of know syntax like now we all are able to creating the tables. Like create tables is table name, then its column data type, then semicolon. Okay. So is name data type and precision is important here. Okay. Then we saw DML language like insert. So we have inserted it into table by two methods. First is by value method, second by address method. So value method insert into student values, then put directly values. Okay, and this is the value method. And by using address method, we have put first this ampersand symbol, then number and name and marks. Insert into student values and ampersand number comma name and marks. This is address method. After that we have put the values and then forward slash. Okay. Then inserting data into specified column. Okay. And insert into table name, then specific column names, then values keyword and then value. This is value method. Use specified column, number, name, values and then its values. Okay. So same by in specified column by using address method. So in address, first we put insert into, then table name, then columns names, and here we not put value, here we put ampersand and its column names again. Same here, these column names we put here, only here this ampersand symbol is included. Okay. So then again put by forward slash, and then we saw update. Update used to modify the table data. अपने टेबल डेटा में कुछ भी अगर चेंज करना हो, anything we want to change, then this update command is used. Okay. So update is nothing but update table name, then set keyword is important. This syntax you have to remember. Okay. Update table name, then set, then column name equal to that value, which column we want to update. Okay, we saw example update student, like set marks equal to 500 where number equal to 2, means put the marks of student 500 where the एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 2, स्टूडेंट का नंबर जिसमें 2 है उसमें 500 मार्क डाल दो. ओके. तो डिलीट देखा. डिलीट में क्या है, दिस कैन बी यूज टू डिलीट द टेबल डेटा टेम्पररीली, मतलब इसको रोल बैक हम कर सकते हैं. ओके. तो ये डिलीट को हम रोल बैक कर सकते हैं. ओके. डिलीट टेबल नेम, देन वेयर कंडीशन. तो टेबल में का स्पेसिफिक रो जो रहता है वो स्पेसिफिक रो डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होता है, और ये टेम्परली होता है, इसमें रोल बैक पॉसिबल है. ओके.
उसके बाद डीडीएल का हमने अल्टर कमांड्स देखे। अल्टर में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से वो देखे। एडिंग कॉलम्स, ओके। एडिंग कॉलम में क्या होता है, अल्टर टेबल देन टेबल नेम ऐड कॉलम एंड इट्स डेटा टाइप, मतलब कॉलम और उसका कॉलम नेम डेटा टाइप और प्रेसिजन भी देना पड़ता है इधर, ओके। तो रिमूव कॉलम करने के लिए डायरेक्टली वी हैव यूज ड्रॉप। रिमूव करने के लिए डायरेक्टली वी हैव यूज ड्रॉप। सो अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम देन कॉलम नेम, ओके। दिस रिमूव कमांड। देन हमने देखा मेकिंग कॉलम अनयूज्ड, ओके। सो अनयूज करने के लिए उसमें क्या है, अल्टर टेबल देन वी हैव टू यूज टेबल नेम देन यूज कीवर्ड लाइक सेट अनयूज्ड कॉलम देन कॉलम, ओके। देन ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम का देखा ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम, ओके। कॉलम को रीनेम करना होगा तो वो कैसे करते हो देखा, अल्टर कमांड यूज करने का, टेबल टेबल नेम देन रीनेम कॉलम, पुराने कॉलम का नाम और नए कॉलम नेम, ओके। ट्रंकेट देखा, ट्रंकेट में क्या होता है, दिस विल डिलीट एंटायर टेबल डेटा परमानेंटली, ओके। और ये ट्रंकेट में टेबल का डेफिनेशन जो रहता है वो ऐसे रहता है, वो टेबल का पूरा जो डेटा रहता है वो डिलीट होता है, ओके। और ड्रॉप में पूरा टेबल ड्रॉप हो जाता है, उसका डेफिनेशन जो स्ट्रक्चर रहता है वो इंसर्टेड डेटा सब कुछ ड्रॉप हो जाता है, वो टेबल वापस रोल बैक नहीं होता, ट्रंकेट भी रोल बैक नहीं होता, ओके। देन रीनेम, ये रीनेम किस लिए है, ये रीनेम टेबल को रीनेम करने के लिए, और ऊपर जो रीनेम देखा था ये कॉलम को रीनेम करने के लिए। कॉलम रीनेम करने के लिए अल्टर कमांड यूज करते हैं, और ये डायरेक्ट टेबल का नेम रीनेम करना है तो डायरेक्टली रीनेम कमांड यूज करती है, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, ओके। उसके बाद डीआरएल देखा एक सिलेक्ट का है, हम पूरा टेबल स्टार देके सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा टेबल का डेटा, अदरवाइज स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से, ओके। देन ऑपरेटर्स देखे हमने, कंडीशनल सिलेक्शंस एंड ऑपरेटर्स, उसमें हमारे पास दो क्लॉज थे, वेयर एंड ऑर्डर बाय, ओके। सो वेयर में और भी हमने लॉजिकल ऑपरेटर से वो देखे, अरिथमेटिक, कंपैरिजन देन लॉजिकल्स, ओके। उसमें कंपैरिजन है, लॉजिकल एंड और नॉट, और ये पूरे ऑपरेटर से, ओके। इसका यूज हमने देखा, ये सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नंबर इक्वल टू 2, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 2, ये इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 2, ओके। इसका भी मतलब नॉट इक्वल टू 2, ओके। सो ये पूरे देखा। उसके बाद एक लाइक ऑपरेटर था, ओके, यूजिंग बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन नॉट इन, ये पूरे, नल नॉट नल, देन लाइक था, ये लाइक वाइज पैटर्न लिखना पड़ता है, जिसका नेम एस से स्टार्ट होता है उसके लिए ऐसा, एंड होता है उसके लिए ऐसा, सेकंड नेम के लिए उस थर्ड नेम स्टार्ट विद डी, ओके। थर्ड नेम के लिए डबल अंडरस्कोर देने का, उसके बाद ये लिखने का। और ये पीछे वाला जो इधर सब, आई थिंक इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है ये कोरीज में, इसको क्या करने का आप लोगों ने, जो हमने स्टार्ट में से जो किया था ना, अभी ये फर्स्ट नेम के लिए कैसा है, यस मॉड्यूलो, ओके। देन लास्ट का लेटर के लिए मॉड्यूलो एच, ओके। देन पहला सेकंड लेटर के लिए क्या लिखते थे हम, अंडरस्कोर ए मॉड्यूलो, अभी सेकंड लेटर ए मिल रहा है, ओके, ऐसा। तो अभी लास्ट से सेकंड लेटर हमको चाहिए, तो क्या करने का, इसको उल्टा कर देने का। उल्टा करने का मतलब कैसे करने का, पहले मॉड्यूलो लिखने का, उसके बाद लेटर लिखने का, उसके बाद ये अंडरस्कोर लिखने का, आपको ये मिल जाएगा। इधर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। ये ऐसा नहीं है, उस नेम सेकंड लेटर स्टार्ट विथ टी फ्रॉम एंडिंग, तो uh, ये पहले एम्परसेंट, उसके बाद लेटर, उसके बाद अंडरस्कोर, ये एंड थर्ड लेटर को भी इसका रिवर्स कर देने का, लास्ट से अगर चाहिए तो इसका रिवर्स कर देने को, तो इन द सेम वे लाइक। देन ऑर्डर बाय में असेंडिंग और डिसेंडिंग रहता है, ये ऑर्डर बाय इंफॉर्मेटिका भी में आपको काम आएगा, उसमें भी सब असेंडिंग डिसेंडिंग रैंक करके है कुछ हमारे पास,
तो रैंक ऑर्डर बाय, तो उसमें भी ये काम आता है असेंडिंग डिसेंडिंग। और ओरेकल उसका बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ये प्रोवाइड कर देता है। हमको डिसेंडिंग अगर चाहिए हो तो ये डेस्क कीवर्ड उसके बाद में देना पड़ता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नंबर देन डेस्क। ओके, देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज देखिए हमने, उसमें कमिट है, वर्क सेव करने के लिए दो टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट हम थ्रो करते हैं, इम्प्लिसिट बाय डिफ़ॉल्ट वो थ्रो हो जाता है। और रोल बैक उसमें क्या होता है, प्रीवियस हमने जिधर तक कमिट किया है उधर तक रोल बैक पॉसिबल होता है, एंड अप टू प्रीवियस रोल बैक तक ये फिर से रोल बैक हो सकता है। उसका कमांड देखा हमने, रोल और रोल वर्क। ओके, देन सेव पॉइंट होता है, अगर हमको पूरा ये टू रो चाहिए, उसके नीचे वाले नहीं चाहिए, तो हमको सेव पॉइंट देने होते हैं। वो सेव पॉइंट तक हम रोल बैक कर सकते हैं। सपोज सेव पॉइंट S3 तक रोल बैक किया तो ऊपर के ये दो रो में रहेंगे, बाकी के नीचे का डिलीट हो जाएगा। ओके, दिस रोल बैक। देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज देखिए, डेटा कंट्रोल में क्या है, ग्रांट एंड रिवोक, किसी को परमिशन देने के लिए, परमिशन निकाल लेने के लिए ये कमांड्स देखे हमने। उसमें क्या होता है, सम प्रिविलेजेस के कमांड सम यूज़र को दिए जाते हैं, और वो यूज़र अगर किसी को कमांड देने लायक होगा तो उसको भी कमांड देने का वो ऑथराइजेशन दिया जाता है, उसको विद ग्रांट ऑप्शन दिया जाता है, तो वो भी रहता है विद ग्रांट ऑप्शन। ओके, और रिवोक मतलब जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उससे वो कमांड्स वो ऑथराइजेशन परमिशंस निकाल लिए जाते हैं, उसको रिवोक बोलते हैं। ओके, देन यूजिंग अलाइसेस, तो हमने अलाइसेस देखा क्रिएट विथ सिलेक्ट। ओके, तो एग्जिस्टिंग टेबल से हम नया टेबल बना सकते हैं, उसमें विद डेटा विदाउट डेटा। कल किसी ने ग्रुप पे पूछा था, उसको एरर आ रहा था। तो जब हम हमारे पास कोई टेबल होगा ऐसा, सपोज स्टूडेंट, उसमें डेटा है, हमको स्टूडेंट टेबल है, हमको स्टूडेंट वन बनाना है नया। तो अगर हम ऐसा मेंशन करेंगे, अगर इसमें सपोज नंबर नेम और मार्क्स ये तीन कॉलम है, तो हम क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन ऐसा एक कमांड लिख सकते हैं, एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मतलब स्टूडेंट से पूरा सिलेक्ट करो और स्टूडेंट वन लिखो। ओके, तो उसको वेयर कंडीशन देना था ना, तो क्या कर रहा था वो, उसमें क्या करने का था, क्रिएट टेबल देन नंबर नेम मार्क्स। अगर हम इधर सिलेक्ट स्टार का यूज कर रहे हैं, स्टार का मतलब क्या है, स्टूडेंट टेबल में से पूरा डेटा सिलेक्ट करो। ओके, तो ये पूरा सिलेक्ट करता है, मतलब इधर भी आपको उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उसके कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे। ओके, अगर आपको अपने हिसाब से अगर कॉलम्स नेम अगर चाहिए सिर्फ तीन कॉलम में टेबल में, तो आपको दो ही चाहिए, तो इधर क्रिएट टेबल नंबर कॉमा नेम, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन नंबर नेम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा लिखने का। तो इधर भी स्टार नहीं लिखने का, एज सिलेक्ट नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऐसा लिखने का। तो इधर भी कॉलम नेम ही लिखने का जितना इधर लिखा है, तो वही उतने ही सिलेक्ट होके इधर आ जाएंगे। ओके, तो स्टार लिखने के बाद पूरे कॉलम के नेम इधर मेंशन करने होते हैं। ओके, तो ये देखा हमने स्पेसिफाइड कॉलम्स कैसे क्रिएट करते हैं, विदाउट टेबल डेटा कैसे करते हैं, इंसर्ट विथ सिलेक्ट डेटा देखा, डायरेक्टली सपोज सम ब्लैंक टेबल है विद डेफिनेशन, तो इसमें सिर्फ क्या कंडीशन है, वो उसका डेटा टाइप प्रेसिजन सेम होना चाहिए, तभी वो जाके इंसर्ट होगा। ओके, कॉलम एनालिसिस देखा, कॉलम एनालिसिस का क्या यूज़ है, वो हमको किसी कॉलम नेम किसी को अलग दिखाने के लिए, मतलब और फुल फॉर्म दिखा सकते हैं हम, तो उसका अलग अलाइस नेम देके वो ओरिजिनल कॉलम का नेम हाइड करके दूसरा नेम दिखाने के लिए कॉलम एनालिसिस यूज़ होते हैं। ओके, टेबल एनालिसिस का क्या यूज़ है, वो टेबल एनालिसिस डॉट मेथड से यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कल कि जॉइनर वगैरह हम जो करते हैं जॉइंस, तो उसमें वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें अलाइस नेम देना पड़ता है। भी मर्ज हमको नहीं है। ओके, मल्टीपल इंसर्ट, उसमें हमने देखा ये टेबल हम कौन सा भी लेके, इसका सिर्फ कंडीशन देने के लिए यूज़ होता है, कौन सा भी ये टेबल ले सकते हैं हम। तो उसके बाद एक टेबल हमारा था जो एम्प्लॉय, वही हमने कंडीशन के लिए भी यूज़ किया। तो मल्टी इंसर्ट विथ ऑल फील्ड्स मीन्स पूरे फील्ड में इंसर्ट करो।
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इसमें सिर्फ ये ऑल कीवर्ड एक्स्ट्रा है, तो इंसर्ट ऑल लिखने के बाद मतलब क्या होगा, ये पूरा इंसर्ट करो, ओके। और ये कैसे इंसर्ट होता है, ये कंडीशन के हिसाब से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, मतलब 10 कितनी बार है, एक ही बार है, तो ये पूरे रोज एक एक बार इंसर्ट हो गए। इन द सेम वे मल्टी इंसर्ट विथ स्पेसिफाइड फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड में हमको जब इंसर्ट करना होता है तो ये, ओके। तो डुप्लीकेट रोज मतलब हमने ये भी देखा था, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, रोल नंबर इक्वल टू 1 और रोल नंबर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 10 है, मतलब 10 से ज़्यादा कितने वैल्यूज है डिपार्टमेंट टेबल में, तो 20, 30, 40, तो 3 बार ये एक एक रोज इंसर्ट हो गए, तो टोटल 9 बार इंसर्शन होगा, ओके। तो मल्टी इंसर्ट विथ कंडीशन बेस्ड, तो कंडीशन बेस्ड मतलब इसका व्हेन एंड देन कंडीशन देके इंसर्ट किया जाता है, तो ये हम लोगों ने देखा कंडीशन बेस्ड एंड एल्स कोई नहीं हुआ तो एल्स इंसर्ट होगा, और ये फर्स्ट इंसर्ट होगा, फर्स्ट नहीं हुआ तो एल्स इंसर्ट होगा, और ये टेबल्स में भी हमने देखा कैसे इंसर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। अभी इधर तक किसी को कुछ डाउट है? इधर तक हमने जितना भी पूरा देखा, किसी को कुछ डाउट? हेलो। हाँ। सर वो वेन एंड बूम का मतलब ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में या फिर कम होता है? नहीं नहीं, वेन और देन का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन वो कभी कभी करना पड़ता है अपने को। उसका इंसर्ट फर्स्ट वेन एंड, मतलब इसमें क्या डाउट है क्या आपको, समझ में नहीं आया क्या वेन एंड देन? नहीं, डाउट नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसका जो आउटपुट है ना, वो हम मतलब स्मॉल क्यूरी देके भी उसका आउटपुट ले सकते हैं ना, तो इतना बड़ा क्यूरी मतलब क्यों देने पड़ते हैं उसके लिए? हाँ, इधर आप वेन देन मतलब एक कौन सा भी क्वेरी दे सकते हैं इधर आप, ऐसा आउटपुट, लेकिन हम्म। उन्होंने अगर स्पेसिफिकली ये मेंशन करके दिया कि हमको ये इसी टाइप में चाहिए वेन देन कंडीशन देके, तो ये अपने को ये यूज करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज आप अपने अपने हिसाब से आउटपुट कैसे भी ला सकते हो उधर। ओके ओके। 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 तो और कोई डाउट है किसी को? ओके फाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस का हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, नियर अबाउट 50-60 फंक्शंस हो गए हमारे पास इधर। तो वो पूरे हमको देखने हैं, ओके। उसमें से कुछ हमको यूजफुल है, कुछ नहीं है, तो इम्पोर्टेंट कौन से वो मैं आपको बाद में बोल दूंगा, ओके। तो फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज, लाइक कैसे कैटेगरी किए, इसके दो कैटेगरीज में ये डिवाइड किए फंक्शन। पहले है सिंगल रो फंक्शन और सेकंड है ग्रुप फंक्शन। तो अभी ये सिंगल रो और ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, टेबल्स के, इधर कौन सा है, टीचर टेबल है, टीचर नंबर फर्स्ट नेम, ओके, ये टेबल हमको आएगा। तो इधर से ये कॉपी कर लेते हैं, ओके। और एक आधा नाम ऐड कर लेंगे, ओके। देन उसके लास्ट नेम मुर्रे, देन ओके। सपोज ये हमारा कोई कॉलेज का डेटा है, तो वो कॉलेज के डेटा में टीचर्स रहते हैं, तो टीचर्स में सपोज और कोई स्टूडेंट पकड़ो आप, उनके नंबर्स है, उनके फर्स्ट नेम है, उनके लास्ट नेम है, ओके। और उनके सपोज कोई सैलरीज है, हम कुछ भी कंसिडर कर लेके 1000, 1500, 2000, 500,
ओके, 3000 एंड 4000, ओके, लाइक दिस। उनके कुछ सैलरीज है और उनके डिविजन्स है। अभी कॉलेज में डिविजन्स कैसे रहते हैं? ए, देन बी, सी। फिर से ये बंदा बी डिवीजन में, ओके, फिर से ये सी में, फिर से ये ए में, ओके। ऐसे डिवीजन से सपोज इनके अलग अलग ब्रांचेस है। तो सपोज ये मैक से है, जब ये मैक से है, ओके, तो ये कंप्यूटर से है, ये आईटी से है, ओके। और उसके बाद और ये ईएनटीसी से है, ओके, देन ये वापस से कॉम से है, ओके। ऐसे उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। तो हमारे इसमें क्या है, फंक्शंस। तो फंक्शंस में सिंगल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस का मतलब क्या होता है? जो फंक्शंस ओनली सिंगल सिंगल रो पे ऑपरेशन करते हैं, एक रो पे जिसका ऑपरेशन होता है वो रहता है सिंगल रो फंक्शन। अभी हमको इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इधर दिया है, तो हमको उसका फुल नेम चाहिए। तो फुल नेम कैसे करेंगे हम? फुल नेम, ओके। तो ये फुल नेम बनाने के लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास। तो हम देखेंगे वो फुल नेम कैसा आएगा। इधर अजय और क्या है, मोरे, स्पेस मोरे, ओके। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्कैट करके स्ट्रिंग फंक्शन है, वो देखेंगे हम। लेकिन ये क्या हुआ, सिंगल रो, ओके। तो सिंगल रो फंक्शन में हमने ये एक रो पे ऑपरेट किया फुल नेम, तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के फुल नेम आ गया। ये सिंगल ही रो पे ऑपरेशन हुआ। तो मेरे को अगर ये बाकी के रो पे भी ऑपरेशन अगर चाहिए, ये नीचे वाले, तो एक एक रो के लिए उनके अलग अलग फुल फुल नेम आएंगे, ओके, लाइक राहुल सांगले, ओके। देन उसके बाद क्या है, पूजा, ओके। तो ऐसे एक एक रो के अलग अलग आउटपुट आएंगे। मतलब जिसके हर एक रो का अलग आउटपुट आता है, वो सिर्फ सिंगल ही रो पे काम करता है। इसको क्या कहते हैं, रोज। और ये रहते हैं कॉलम्स, ओके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहते हैं, ये रोज, और ये वर्टिकल लाइंस कॉलम्स, ओके। तो ये रोज पे, ये एक एक सिंगल रोज पे जो काम करेगा उसको कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। मतलब ये हमको जितने रोज है उतने आउटपुट मिलेंगे, ओके। ये सिंगल रो फंक्शन में, उसमें ऐसा नहीं होगा इसमें एक कमांड दे दी और ये पूरे टेबल का एक ही आउटपुट आ गया, ऐसा नहीं होता। तो ये सिंगल रो में सिंगल सिंगल रोज के सिंगल सिंगल आउटपुट मिलेंगे। इसको कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने का, सिंगल रो में क्या होता है, ये सिंगल रो पे ऑपरेट करता है, ओके। और उसके अपोजिट अभी ग्रुप फंक्शन है हमारे पास। तो ग्रुप फंक्शन कैसे होता है? सपोज हमारा ये कॉलेज अभी डिवीजन है, सबका सैलरी है। तो हमको अभी ये पता करना है कि जो कॉलेज में हमारा ए डिवीजन है, तो ए किधर है, इधर भी एक है, मतलब ए डिवीजन में जितने भी टीचर है, और सपोज कोई डिपार्टमेंट है हमारे पास, मैक कॉम्प आईटी, ओके। सपोज मेरे को मैक डिपार्टमेंट में जितने टीचर्स है, उन सब की सैलरी में से जिसको मैक्सिमम सैलरी मिलती है, जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी है, वो निकालना है पूरे मैक डिपार्टमेंट में से। तो मैं कैसे करूँगा, सबकी मैक्स सैलरी निकालूंगा। तो मैक्स ऑफ सैलरी एक करके ग्रुप फंक्शन से होता है हमारे पास, ओके। मैक्स करके ग्रुप फंक्शन है। तो उसका मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जिस टीचर को मैक्स सैलरी मिलती है वो निकालनी है यूजिंग उसका डिपार्टमेंट पकड़ के, ओके। तो मैक डिपार्टमेंट को मैक्सिमम सैलरी के लिए हम वो मैक्स का ग्रुप फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने भी मैक डिपार्टमेंट में टीचर काम करते हैं, तो अभी इधर हमने दो ही रिकॉर्ड्स लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे और बहुत सारे ये डिपार्टमेंट हमारे पास तो चार पांच ही रहेंगे, ओके। जो ब्रांचेस रहते हैं हमारे, तो मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, एनटीसी, सिविल, ऐसे चार पांच इंजीनियरिंग की ब्रांच रहेंगी। तो चार पांच ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स पढ़ाते रहेंगे, ओके। तो हम स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे उधर, ओके।
तो हमको सब में से मैक्स सैलरी निकालना है, तो ये मैक का पूरा जितने भी मैक में स्टूडेंट है वो सबका कैलकुलेट करके उसमें से जो मैक्सिमम सैलरी है वो आउटपुट देगा। मतलब इसमें भी आउटपुट क्या आता है, सिंगल आउटपुट आता है ग्रुप फंक्शन में भी। लेकिन वो कैलकुलेट करते समय पूरा जो हमने जो कंडीशन दिया है, सपोज उसको दिया है ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ओके, ऐसा दिया है, सपोज मेक डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करने बोला है, तो वो टेबल में से जितने भी मेक वाले हैं वो सबका कैलकुलेट करके सिंगल आउटपुट देगा मैक्सिमम जिसका सैलरी हो। और हम मेक वालों का, कॉम्प वालों का, सपोज मेरे को चाहिए बी डिवीजन में जितने भी स्टूडेंट है उन सब का जो सैलरी है उसको सम करो, टोटल करो सैलरी का, तो सम करके भी एक ग्रुप फंक्शन है। एवरेज चाहिए तो एवरेज भी कर सकते हैं हम। तो सिंगल रो में क्या होता है, एक एक रो पे ऑपरेशन होगा, ओके। और ग्रुप में क्या होगा, वो ग्रुप वाइज ऑपरेट होगा। मतलब एक ग्रुप में जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो सबको मैक्स निकालेगा, सम निकालेगा, और वो सिंगल आउटपुट देगा, ओके। तो इसमें डाउट है कुछ, सिंगल रो क्या होता है, ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं, नहीं समझ होगा तो पूछ लो, वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबको समझ में आ गया? ओके, तो वापस एक बार बोल देता हूँ। ग्रुप फंक्शन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सम, ओके, मैक्स, देन मीन, ओके, देन एवरेज, देन काउंट, ऐसे रहते हैं। तो ये हो गए ग्रुप फंक्शंस, ओके। और सिंगल रो हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सिंगल रो। लेकिन सिंगल रो का कैसा रहता है, सिंगल रो में ओनली सिंगल रो पे ऑपरेट करके उसका सेपरेट आउटपुट आएगा। फिर ये सेकंड रो पे ये ऑपरेट होगा, एग्जीक्यूट करके इसका सिंगल आउटपुट देगा, फिर थर्ड रो का सिंगल देगा, ऐसे हर एक रो का अलग अलग आउटपुट देगा। लेकिन ग्रुप फंक्शन जो रहते हैं, तो ग्रुप में वैसा नहीं होता। ये ग्रुप फंक्शन में ये मेक डिपार्टमेंट में जितने भी सैलरीज है वो सबकी सबके सम करके टोटल सिंगल आउटपुट देगा। और सब में से, मैक में से जितने भी सैलरी है सबको, सब में से जिसका मैक्स सैलरी है वही आउटपुट आएगा, होगा, जिसका मीन है वही आएगा, जिसका एवरेज, सबका मिला के एवरेज निकालेगा और वो एवरेज आउटपुट देगा। काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ सैलरीज कितने हैं, इधर सपोज 6 8 है तो उसका वो काउंट 8 देगा। ये ऐसे रहते हैं ग्रुप फंक्शन, वो ग्रुप पे काम करते हैं, ओके। तो लेट्स सी व्हाट इज इन दैट। तो ऐसे हो गए हमारे फंक्शन के दो टाइप, फर्स्ट इज अ सिंगल रो फंक्शन एंड सेकंड इज अ ग्रुप फंक्शन, ओके। तो इन सिंगल रो फंक्शन अगेन, सिंगल रो कैटेगराइज्ड इनटू 5, मतलब इसका 5 फिर से कैटेगरीज किया है। और इधर दिया है दिस विल अप्लाइड फॉर ईच रो एंड प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल आउटपुट फॉर ईच रो, ओके। जैसा मैंने अभी बताया आपको, हर एक रो के लिए इंडिविजुअल आउटपुट देगा, सिंगल आउटपुट, हर एक सेपरेट आउटपुट देगा हर एक रो के लिए, इधर से एक रो के लिए सेपरेट आउटपुट, ओके। तो उसमें 5 टाइप्स के उसके सिंगल रो फंक्शंस के, अलग अलग टाइप्स में वो डिवाइड किए हैं। फर्स्ट टाइप है उसका न्यूमरिक फंक्शन, ओके। न्यूमरिक मतलब क्या होता है, ओके, सब पूरे टाइप एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूमरिक फंक्शंस, देन सेकंड है स्ट्रिंग फंक्शन, थर्ड है डेट फंक्शंस, ओके, देन मिसलेनियस फंक्शन और कन्वर्जन फंक्शंस, ओके। तो इधर से हम देखते हैं जो फंक्शंस ओनली नंबर्स पे काम करेंगे उसको कहते हैं न्यूमरिक फंक्शन, ओके। न्यूमरिक मतलब क्या है, जो फंक्शंस ओनली ये नंबर्स पे काम करेंगे, ये वही नंबर, ये नंबर, मतलब न्यूमेरिकल डेटा पे जो काम करेंगे उसको कहते हैं न्यूमेरिकल फंक्शंस, ओके। ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा, जो ऐसा स्ट्रिंग लिखे होते हैं उस पे ये न्यूमेरिक फंक्शन यूज नहीं होंगे। हम ये स्ट्रिंग्स पे न्यूमेरिक फंक्शन यूज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम नंबर्स पे यूज कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल डेटा पे न्यूमेरिक फंक्शन चलेंगे, ओके। और दूसरे जो रहते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, ओके।
तो ये स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ऐसे नेम्स लाइक, ये जो स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग होता है जो हमने डेटा रिटर्न में लिखा है, ये स्ट्रिंग होता है, ये सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करेंगे। तो ये नंबर पे काम नहीं करेंगे, ये स्ट्रिंग फंक्शन ये नंबर पे काम नहीं करते, ये स्ट्रिंग पे काम करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास कोई डेट का कॉलम है, इसमें सपोज कोई डेट है, सपोज आज का डेट लेते हैं हम 28, देन 6 इन 2022। ओके, तो ये हो गया आज का डेट, तो ये क्या हुआ, डेट फंक्शन। तो ये डेट के जो फंक्शंस है वो सिर्फ डेट पे काम करेंगे। ओके, ये डेट पे ही काम करते हैं डेट फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन सिर्फ नंबर पे काम करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन सिर्फ जो वर्कर रहता है हमारा, वर्क है स्ट्रिंग, तो उसी पे काम करेंगे। ओके, तो ये डेट पे। और नेक्स्ट टाइप है हमारा मिसलिनियस फंक्शन। मिसलिनियस का क्या मतलब है, जो फंक्शन ये तीनों में नहीं आते वो मिसलिनियस में आते हैं। ओके, ये तीनों में जो फंक्शन कवर नहीं हुए वो मिसलिनियस में आते हैं। मिसलिनियस ये किस पे भी काम करता है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, कन्वर्जन फंक्शंस क्या होता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को नंबर में, न्यूमेरिक टू वर्कर, वर्कर टू क्यार, ऐसा रहता है उसमें, टू क्यार, टू वर्कर, टू डेट। तो वो अलग अलग इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ओके, तो अभी तक क्या देखा हमने, फंक्शंस रहते हैं, फंक्शंस के दो टाइप से, सिंगल रो फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस। ओके, तो सिंगल रो में अगेन 5 कैटेगरीज किया है, पहले हम सिंगल रो से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप हम बाद में देखेंगे। ओके, तो सिंगल रो फंक्शंस में फिर से 5 कैटेगरीज किए हैं, तो वो 5 कैटेगरी में अलग अलग है, न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट फंक्शन, मिसलेनियस एंड कन्वर्जन। ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। ओके, और ये सिंगल रो का मेन कंडीशन याद रखने का, दिस विल अप्लाइड फॉर ईच रो एंड प्रोसेस द सेपरेट आउटपुट फॉर ईच रो। ओके, ये हर एक रो के लिए अलग अलग आउटपुट देता है। 1 मिनट। तो ये हर एक रो के लिए अलग अलग आउटपुट देगा। ओके, तो पहले ये न्यूमेरिक फंक्शंस देखते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो ओनली नंबर्स पे काम करेंगे, वो रहते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। ओके, तो हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन कौन से है, ये पूरे फंक्शंस है हमारे पास न्यूमेरिक, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकली फंक्शन है यहाँ दिए है। ओके, तो न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो पहले एबीएस। ओके, एबीएस, देन साइंस, एसक्यूआरटी, मॉड, एनवीएल, पावर, एक्सपोनेंशियल, एलएन, लॉग, सील, फ्लोअर, राउंड, ट्रंक, बिट एंड ग्रेटेस्ट, लिस्ट, कोएलेस। ओके, तो ऐसे ये पूरे न्यूमेरिक के फंक्शन से हम वन बाय वन देखेंगे उसको। तो ये एबीएस। ओके, एबीएस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू। अभी ये क्या है, मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट में, इस पर इतना ध्यान मत दो, उसमें क्या होता है एब्सोल्यूट में, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, इसका मतलब है आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ भी वैल्यू लिखो, वो ऑलवेज आपको रिटर्न में पॉजिटिव नंबर ही देगा, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ओके, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। इंटरव्यू में वो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एबीएस फंक्शन। ओके, सो आपको बताना है एबीएस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, सिर्फ इतना बताने का है आंसर में, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो उनको समझ जाएगा कि इसको पता है। ओके, तो उसका सिंटैक्स कैसे है अभी, एब्सोल्यूट एंड देन इनटू ब्रैकेट वैल्यू। ओके, वेरी सिंपल सिंटैक्स, लाइक सिलेक्ट एब्सोल्यूट, ये इधर कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं हम, 5 कॉमा एब्सोल्यूट -5 0 नल फ्रॉम ड्यूअल। अभी ये ड्यूअल क्या होता है, तो ड्यूअल एक बाय डिफॉल्ट टेबल होता है हमारे सिस्टम में। ओके, तो हम करके देखते हैं। ओके,
सिलेक्ट, हमारे पास कौन सा टेबल है पहले वो देख लेते हैं। आर फ्रॉम ईएमपी, ओके ठीक है। अभी ड्यूअल क्या होता है, हम सिलेक्ट करके देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल, ओके। ये ड्यूअल में क्या आया आउटपुट, डी और एक्स। तो ये इसमें एक ही कॉलम होता है और एक ही रो होता है। तो कभी कभी आपको अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो व्हाट इज अ ड्यूअल टेबल, तो आप बता देने का ड्यूअल टेबल इज यूज्ड फॉर ओनली टेस्टिंग पर्पस, एंड इन ड्यूअल टेबल देयर इज ओनली वन रो एंड ओनली वन कॉलम प्रेजेंट, ओके। तो ये डी हो गया कॉलम और एक्स हो गया रो। तो ड्यूअल टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम और एक ही रोज होते हैं। तो ये हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मतलब फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कॉलम एक रोज रहते हैं। हमारे टेबल कैसे रहते हैं, उसमें 10 12 4 5 6 रो रहेंगे। तो जब हम सिंगल रो फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा, जितने रोज है उतने आउटपुट आएंगे और हमको रिक्वायर्ड एक ही रहता है। तो हम ये ड्यूअल टेबल की मदद से उसको हम फास्टली कर सकते हैं। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, बाकी इसका कुछ यूज है नहीं। लेकिन कभी कभी पूछते हैं इंटरव्यू में ड्यूअल टेबल क्या होता है, तो वो बताने का, उसमें सिर्फ ओनली वन रोज एंड वन कॉलम अवेलेबल होते हैं। दिस इज ड्यूअल टेबल, ओके। तो अभी हम ये एब्सोल्यूट का करके देखते हैं, ओके। सिलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ 5, ओके। अभी इधर कैसे दिया है, सिलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ 5 -5 0 एब्सोल्यूट ऑफ नल फ्रॉम डुअल, ओके। तो अभी एब्सोल्यूट ऑफ 5 का इसमें क्या है, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव में ही उसका आउटपुट देगा। ये नीचे जो आया है ये आउटपुट है। तो ये 5 का 5 आउटपुट आया पॉजिटिव में, ये -5 का, तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये +5 चाहिए, ओके। ये -5 का 5 आउटपुट आएगा, ओके। तो इसमें नेगेटिव आउटपुट कभी नहीं आएगा। एब्सोल्यूट एबीएस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये प्रिंटिंग में गलत हो गया। तो उसमें -5 का 5 आउटपुट आएगा प्लस में, जीरो का 0 आएगा, नल का नल ही रहेगा। करके दिखाता हूँ आपको, एब्सोल्यूट 5 देन कॉमा एबीएस -5 एबीएस 0 एबीएस नल फ्रॉम ड्यूअल। ये देखो इधर 5 का 5 आउटपुट आ गया, -5 का भी प्लस में 5 आ गया, इधर गलत है। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेने का पीडीएफ में, ओके। तो एब्सोल्यूट -5 का 5 0 का 0 नल का नल, ओके। इधर हमने अभी क्या यूज़ किया है, ड्यूअल टेबल, क्योंकि ये फास्ट। आपको अभी मैं दूसरा टेबल यूज़ करके भी दिखाता हूँ, उसमें क्यों हम ड्यूअल टेबल यूज़ करते हैं, ओके। तो ये सेम लेंगे, सिर्फ टेबल हम लेंगे हमारा ईएमपी, ओके। तो अभी कोई बता सकता है अभी मैं ये ईएमपी टेबल करने के बाद मेरा आउटपुट कैसे आ सकता है, व्हाट इज द माय आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड। किसी को कुछ आइडिया। अभी इधर से मैंने कैसे बताया, सिंगल रो फंक्शन जो रहते हैं, अभी ड्यूअल टेबल में एक ही रो एक ही कॉलम है। वैसे हमारा ये एम्प्लॉय टेबल है, देखो एम्प्लॉय, उसमें कितने रोज है, 1 2 3 4 5 6 रोज है, ओके, और 3 कॉलम्स है। तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताया। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है। It will same as above output, sir. मीन्स व्हाट इज दैट। Five. It will print five, five, zero. Then नो नो, ये आउटपुट क्या आएगा वो मत बताओ, हाउ मेनी रोज इट विल गेट। one row. नो, हाउ इट विल गेट वन रोज, व्हाट आई कैन टेल यू, ये सिंगल रो के लिए सिंगल आउटपुट देगा।
सिंगल रो फंक्शन मीन्स एक रो के लिए एक आउटपुट, दूसरे रो के लिए दूसरा आउटपुट, तीसरे के लिए तीसरा। इधर जितने भी रोज है ना वो उतना आउटपुट देगा। ओके, ये देखो कितना आया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोज आए आउटपुट में। ओके, आउटपुट सेम आएगा सब रो में क्योंकि हमने एक ही वैल्यू पास किया है उसको 5 - 5 0। ओके, तो इधर भी सिंगल रो में जो आउटपुट आया वो हर एक रो में वो आउटपुट आएगा, लेकिन उसने अभी एम्प्लॉय टेबल के लिए हर एक रो के लिए एक एक आउटपुट दे दिया। तो यही रहता है सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो का मतलब क्या है, सिंगल रो के लिए सिंगल आउटपुट अलग से देगा। तो ये ड्यूअल क्यों यूज करते हैं, उसमें एक ही रो एक ही कॉलम है तो ये सिंगल आउटपुट देगा हमको। समझ में आया? अभी कुछ डाउट है? इसका यूज क्या है सर फिर? किसका? ये एब्सोल्यूट का। यस। तो एब्सोल्यूट का कैसा रहता है, तो अभी ये हमारा सपोज कोई सैलरी कॉलम है। ओके, हमको कुछ कंपनी में कॉलम दे दिया तो उसमें सबकी सैलरीज है। तो सैलरीज अभी सपोज इसका निगेटिव हो गया इधर, जो टाइप करते समय किसी से मिस्टेक हो गया, ये सैलरी निगेटिव हो गया। ओके, तो निगेटिव मतलब ये राहुल को उसके घर से 1500 भरने पड़ेंगे अभी उसको, कॉलेज को। तो वैसा नहीं चलेगा, सबका सैलरी तो पॉजिटिव में ही चाहिए हमको। तो वो ऐसा जब मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए, इधर पॉजिटिव करने के लिए हम इधर ऐसा लगा देते, एबीएस एब्सोल्यूट ऑफ सैलरी। ओके, तो ये कमांड वो टेबल में लगा देने के बाद ये इसका कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। हम जो भी नेगेटिव में भी वैल्यू देंगे तो वो पॉजिटिव कर देगा। एब्सोल्यूट क्या करता है, पॉजिटिव करता है। ओके, नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव करता है। तो एब्सोल्यूट सैलरी ये कमांड उसको लगा देने के बाद हम जो भी वैल्यू बाद में उसमें पुट करते चलेंगे तो वो वैसे उसको प्लस करते रहेगा, तो मतलब किसी का सैलरी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इसका ये यूज होता है। ओके, समझ में आ गया? ओके, फाइन। तो ये हो गया एब्सोल्यूट। तो इसके मदद से हम सब वैल्यू पॉजिटिव ही ला सकते हैं। ओके, और ये हमने देखा ये टेबल्स के जब एम्प्लॉय टेबल्स का हमने किया था तो उसमें एम्प्लॉय का क्या किया था, 6 7 रोज थे तो उतने 6 7 रोज आउटपुट में आ गए। तो इसलिए हम ड्यूअल टेबल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें ओनली 1 रोज एंड 1 कॉलम इज अवेलेबल। ओके, तो नेक्स्ट है साइन। तो साइन गिव्स द साइन ऑफ वैल्यू। ओके, साइन ऑफ वैल्यू मतलब हम जो भी वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे उसका प्लस और -1 में वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सपोज ये +5 है तो उसका +1 आएगा, -5 होगा तो -1 आएगा, 0 का 0, नल का नल। ओके, तो प्लस का +1 में आउटपुट दिखाएगा, माइनस का -1 में आउटपुट दिखाएगा। ओके, some of ये many mathematical function not going to anyone ask you but we have seen। okay, तो साइन में क्या होता है, +1 -1। ओके, तो हम करके देखेंगे, सिलेक्ट साइन ऑफ, सपोज हम लेंगे 20। ओके, कॉमा साइन ऑफ -50। ओके, देन साइन ऑफ 0। ये हर एक हम करते बैठे तो बहुत टाइम जाएगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेने का, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके, साइन ऑफ 0 फ्रॉम ड्यूअल। तो उसमें ये देखो 20 को प्लस था तो +1 आ गया, 15 को माइनस था तो -1 आ गया, और 0 का 0। ओके, नल का नल ही आएगा। तो ये रहता है आउटपुट +1 और -1 में रिटर्न करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा SQRT। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में कैसे रहते हैं हम दिस विल गिवन द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू। ओके, गिव द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू, जो वैल्यू हम उसका प्रोवाइड करते हैं स्क्वायर रूट प्रोवाइड करता है।
मैथमेटिक्स में आप लोगों को तो पता ही है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, यर वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, मतलब जो वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करना होता है वो पॉजिटिव में ही चाहिए। ओके, ये हमको कंपनी में कभी कभार, मतलब ये मैथमेटिक का यूज़ होता ही नहीं ज़्यादातर, लेकिन कभी हमको ऐसा कंडीशन आ गया तो कोई वैल्यूज़ दे दिए उन्होंने, और उनके बोला एक आधे कॉलम दे दिया, उसमें बोला स्क्वायर रूट ये सब का निकाल के प्रोवाइड करो, तो सिंपली एक स्क्वायर रूट फंक्शन हम लगा देंगे और स्क्वायर रूट की मदद से उसका कुछ भी वैल्यू आएगा। अभी स्क्वायर रूट का 4 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट मतलब ये अंडर रूट में ऐसा होता है, अंडर रूट बाय 4, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इंटू टू क्या होता है? 4। तो अभी अंडर रूट में 16 अगर लेंगे स्क्वायर रूट में अपन, तो उसका आउटपुट आएगा 4, क्योंकि 4 इंटू 4 16, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ओके, जीरो का जीरो, नल का नल, वन का वन, तो ये कैसे होता है? सिलेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, तो हम लेंगे 16 देन कॉमा एस क्यू आर टी ऑफ, अब इधर 18 लेंगे। ओके, ये पॉइंट में भी आउटपुट दिखाता है, जो हमको भी इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसा आउटपुट भी इधर दिखा देगा वो। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0 फ्रॉम ड्यूअल। ओके, तो 16 का क्या है आउटपुट? 4, क्योंकि 4 इंटू फोर ये पूरा उसको, मतलब हम क्या बोलते हैं, पूरा डिवाइड हो गया ये 4 इंटू फोर, 16 को, तो ये 16 का 4 आ गया। 18 का पूरा डिवाइड नहीं होता, तो उसको पॉइंट में आउटपुट आ गया। ओके, तो स्क्वायर रूट का ऐसा है, इट विल ओनली गिव्स द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू। ओके, ये सिंटेक्स याद रखने का, सिर्फ स्क्वायर रूट एंड वैल्यू, सिंपल है, साइन एंड वैल्यू, एब्सोल्यूट एंड वैल्यू। ओके, मॉड, mod is a very important function. You can mark it as a very important, because uh, in many of the times interview ask about the mod function. It will ask what is the mod. Okay, so we'll see what is the mod. So mod means this will gives the remainder. रिमाइंडर मीन्स क्या होता है? मराठी में हम उसको बोलते हैं बाकी, जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड देता है। ओके, मॉड विल गिव्स द रिमाइंडर, मतलब जो बाकी रहता है वो हमको मिलता है। ओके, ओके, वो रिमाइंडर हमको ये मॉड में मिलेगा, दिस विल गिव्स द रिमाइंडर। ओके, उसका सिंटैक्स क्या है? 1 मिनट। ओके, मॉड में वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेनी टाइम्स अगर आपके 10 इंटरव्यू हो गए तो साथ में पूछा जाएगा व्हाट इज मॉड। दिस विल गिव्स द रिमाइंडर। सिंटैक्स क्या रहता है? मॉड वैल्यू एंड इट्स डिविजर। ओके, वैल्यू एंड डिविजर, मतलब जो डिवाइड करने में जो वैल्यू रहती है वो डिविजर होती है, और ये एक्चुअल वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट मॉड 7 4, अभी ये इसका आउटपुट 3 आ गया। ओके, तो रिमाइंडर 3 कैसे बचा? 4 7/4 करने का। ओके, तो 7/4 करने के बाद क्या होगा? 4 एक 4, देन 4 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद कितना रिमाइंडर बचता है? 4 एक ही बार उसको डिवाइड करेगा 7 को, उसके बाद 3 बचता है, 4 के बाद 3। समझ में आया आपको? सपोज ओके, ये 7/4, तो 7/4 ऐसे रहते हैं। ठीक है, हम डिवाइड का साइन है क्या? नहीं, 7/4 ऐसा करेगा वो। 4 को एक बार वो डिवाइड होगा, मतलब 4 बाय डिवाइड बाय
सेवन डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 का एक बार उसको डिवाइड होगा तो 1 आएगा और उसको रिमाइंडर 3 बचेगा, 4 के बाद 5 6 7। ओके, तो इसके ये सेम वेज हम इधर कोई भी वैल्यू अगर देंगे तो उसका आउटपुट वैसे आएगा। हम करके देखते। ओके, सिलेक्ट मोड 7 एंड 4, उनका फर्स्ट एग्जांपल। देन उसके बाद हम लेंगे मोड, अभी हम ऐसा लेंगे 10 डिवाइड बाय 5। ओके, तो ये 10 बाय 5 लेंगे तो 5 टू बार पूरा उसको डिवाइड हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि 5 इंटू टू 10 होता है, तो उसमें रिमाइंडर जीरो बचता है, तो इसका आउटपुट भी जीरो आना चाहिए। ओके, मॉड अभी करेंगे 10 बाय दूसरा वैल्यू देंगे 3। ओके, तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 इंटू 3 9 होता है, तो उसमें से एक बचता है। ओके, और कुछ भी लो आप। मोड ओके, 15 को 4 से डिवाइड करो। ओके, तो 4 से करेंगे, 4 इंटू 3 12 होता है, तो उसका भी 3 बचता है। ओके, फ्रॉम डुएल। ओके, 7 4 से किया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 3 बच गया। ओके, 10 5 से किया, 5 इंटू 2 किया तो 10 हो गया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो बचता है इधर। और 3 का 3 इंटू 3 9 होता है, तो उसका रिमाइंडर 1 बचता है। ओके, और मोड 15 बाय 4 का किया तो 4 इंटू 3 12 होता है, तो उसका रिमाइंडर 3 बचता है। इन दिस वे आपको अगर इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा व्हाट इज मोड, तो आपको सिर्फ ये लाइन बताने का, दिस विल गिव्स द रिमाइंडर। ओके, ये पूरा नहीं बताने का, ये पूछेगा भी नहीं कोई आपको, सिर्फ उनको यही एक्सपेक्ट होता है कि व्हाट इज आपको पता है नहीं, और ये सिंटैक्स आपको याद रहा तो ये सिंटैक्स याद कर लेने का। मोड का क्या होता है, वैल्यू एंड इट्स डिविजन। ओके, दिस विल गिव्स द रिमाइंडर, ये लाइन याद रखने का। मॉड क्या देता है, रिमाइंडर देता है, मतलब वैल्यू एंड डिविजर होता है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो उसका रिमाइंडर आता है। इधर तक कुछ डाउट है किसी को? अभी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। ओके, तो नो वन इज हैविंग अ डाउट। तो हमने ये फंक्शन में क्या क्या देखा, पूरा न्यूमरिक में ये एब्सोल्यूट, साइन, स्क्वायर रूट एंड मॉड। ओके, तो ये उसके नाम में उसका याद रखने का ट्रिक्स होता है। एब्सोल्यूट एबीएस मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ याद रखने का, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। साइन मीन्स दिस विल गिव्स द साइन ऑफ वैल्यू। ओके, नाम में उसका आंसर है साइन ऑफ वैल्यू, तो साइन सिर्फ +1 और -1 में देगा। ओके, SQRT मतलब स्क्वायर रूट, उसके नाम से ही पता चल जाता है। SQRT मीन्स दिस विल गिव्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन वैल्यू। एंड ये मॉड का सिर्फ थोड़ा ट्रिकी है, तो मॉड का कैसे, ये रिमाइंडर देता है, ये याद रखना पड़ेगा। दिस विल गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू। ओके, और उसका सिंटैक्स होता है वैल्यू एंड इट्स डिविजर, कोई भी वैल्यू दो, कोई भी डिविजर दो, वो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो देगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट हम कल देखेंगे। ओके, बाकी के फंक्शंस। सो अभी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, एनी डाउट? So okay, thank you all of you for joining today. We'll continue next topic tomorrow. Okay, thank you. Bye bye.